Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel The Grace Coaching Center. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर इंग्लिश का टारगेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो प्रोस के अंदर, पोम्स के अंदर, ग्रामर के अंदर और नावल के अंदर और इसी तरीके से जो इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं वो क्या आएंगे इस साल टारगेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। 20 मिनट्स में जूडो कैंडम में जो इम्पॉर्टेंट सवाल है, मिस जूडो कैंडम गॉट द पनिशमेंट शी डिज़र्व, एलेबोरेट योर आंसर्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबल ऑन मिसेस जूडो कैंडम स्वीट केस, वाई डज शी हाइड इट, व्हाट मोटिव हैज़ द मैन फॉर मर्डरिंग Ukendam, what are two incidents of the man's life which affect his life in 20 minutes with Ukendam, what were the opinion of he and Mrs. Ukendam about the casual meeting, what plan did Mrs. Ukendam make to save herself. Next chapter है आपके पास reflection on the renocking of the East, why does Bertrand Russell consider it useless to resist the industrialization, does the author welcome the cultural uniformity or not, how is a traditional culture threatened in an age dominated by the science and machinery, what does Russell advise the Asian country to do for their progress, what were the factors of the strength of Mohammedan world in China according to Bertrand Russell, which period is a dark age and what does he mean by it, what is the most sinister application of scientific techniques. नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उसके अंदर इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो देख लेते हैं। व्हाट वर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इन अर्लियर हिस्ट्री, व्हाट डज लियाकत अली खान स्टेट द रियल मीनिंग ऑफ द फ्रीडम फॉर द कॉमन मैन टू बी, what difference does the Liaquat Ali Khan point out between the Muslim and Hindus beliefs and attitude, what is the first duty of Pakistanis as a free peoples is to themselves, what is the synthesis that the Liaquat Ali Khan believe in necessary for Pakistan to achieve, how did Liaquat Ali Khan justify the demand for a separate country, why did a Muslim demand a new homeland according to Liaquat Ali Khan, what damn does or a freedom make on us. नेक्स्ट चैप्टर आपके पास द डे द ड्रैम ब्रोक्स, और उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो देख लेते हैं। What does the panic in the day the dam broke appear to have started, how did a Thurber mother, what caused the lieutenant colonel of infantry of lead a failing company of a 300 person, what was a Dr. Mallory afraid of, why did she run faster. फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग एक्ट 3 ऑफ द सिविल वॉक्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो देख लेते हैं। वाई डज द ट्रायल ऑफ अ जॉन्स सीम्स टू बी अनफेयर स्टेट विद रीजन्स, what was a Jack Bardawick crime and why was it hushed up, what lead the constable to arrest and charge the Jones as well. नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास द डिवोटेड फ्रेंड, और इम्पॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं कि हाउ डिड द मिलर परसुएड द हैंड्स टू कैरी द लार्ज sacks of flour to the marketplace, why was the hand unable to look after his garden, what promise was the miller constantly holding out before him, what was a supreme manifestations of a miller's selfishness which caused a hand to lose his life, why did a miller never give the hands to the wheelbarrow, how does the miller wife exploit the simplicity of a poor hands by her husband, how did a miller justify his not asking the hands to share some of the good things during the winter, how did the miller receive little hands. नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास द वर्ल्ड एज आई सी इट, what lead the Einstein to feel a strong sense of the duty towards his fellow man, what is his attitude to a property outward the success and luxury, what force he blamed or persistence of the war,
What in believe in is Einstein attitude to the leadership, democracy, and a war? What is an Einstein belief the concerning the immortality of the soul? What force does he blame for the persistence of war? ये आपके पास प्रोज थे. अब पोम्स स्टार्ट हो रही हैं. सबसे पहली आपके पास जो पोम है वो 7 एजेस ऑफ द मैन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. हर साल जो है इसमें से एक सवाल लाजमी आता है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोम को. डिस्क्राइब द ऑल द 7 एजेस ऑफ द मैन लाइफ एज डिस्क्राइब इन द 7 एजेस ऑफ मैन. सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यही है. हाउ डू यू एग्री विद शेक्सपियर दैट दिस वर्ल्ड इज़ लाइक ऑन स्टेज ऑल्सो डिफाइन इज़ अ फिलोसफी फॉर द लाइफ ऑफ द मैन. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. और जब आप 7 एजेस मैन के वो जो 7 एजेस सारे वाले सवाल कर लेते हैं ना, इसके अंदर एक सवाल इसके अंदर 7 एजेस मैन पूरे बारे में उसका बताया गया, तो वही सारा जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है. फिर आपके पास है कि वाई डज द लवर सिंग्स लाइक अ फर्नेस अकॉर्डिंग टू द पोम द 7 एजेस ऑफ द मैन. वाई डज द स्कूल बॉय गो टू अ स्कूल एट एन स्नेल पेज. नेक्स्ट पोम है आपके पास द मैन ऑफ द लाइफ अपराइट. हाउ डज अ मैन लीडिंग एन अपराइट लाइफ पासिंग हिज अ डे एंड व्हाट रोल डज अ कॉन्साइज प्ले इन हिज लाइफ. व्हाट इज मीन बाय अ रूल ऑफ स्टेट एंड रूल ऑफ गुड. What does the poet mean by a well-spent age and how can it be a wealth? और नेक्स्ट है आपके पास कि how does an upright man defend himself for a natural disaster and calamities. Write down the qualities of an upright man. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास यही है, आखिरी वाला जो क्वालिटीज़ हैं upright man की. फिर आपके पास है द लाइन फ्रॉम एन एसे ऑन मैन. पहला सवाल है इसके अंदर के वाई डज गॉड हाइड द फ्यूचर फ्रॉम क्रिएशन. हाउ डज द फ्यूचर ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर इज़ अ ब्लेसिंग. सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि यही सवाल है सबसे पहला वाला सवाल. हाउ डज द गॉड ऑफ ऑल सी विद इक्वल आइज. वाई डज द पोएट नेम द डेथ अ ग्रेट टीचर. फिर नेक्स्ट आपके पास के व्हाट आर अ 2 ब्लेसिंग ऑफ गॉड मेंशन इन दिस पोम. नेक्स्ट पोम है आपके पास द सॉलिटरी रेपियर और उसमें इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके पास के हाउ डज अ वर्ड कंपेयर द सॉन्ग ऑफ द सॉलिटरी रेपियर विद द सॉन्ग ऑफ द 2 डिफरेंट सिंगिंग बर्ड्स. और नेक्स्ट है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट इंस्पायर्ड वर्डवर्ड टू कंपोज द सॉलिटरी रेपियर. व्हाट डज वर्डवर्ड मीन्स व्हेन ही से इन विल नो वन टेल मी व्हाट शी इज सिंगिंग. और नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सिंगिंग ऑन द वैली. नेक्स्ट पोम है आपके पास म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस इन डाइड. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पी.बी. शेरी इन म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाइड. व्हाट द फ्लावर लीव बिहाइंड इवन आफ्टर देयर डेथ. What example does the poet gives to justify an idea for the separation of beloved. सैमसन एगोनिस्ट उसके अंदर आपके पास है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं हु वॉज एट सैमसन्स एंड हाउ वॉज सैमसन्स टेक द कैप्टिव एंड व्हाट डिड द फलस्तीन मेक हिम डू. What did Samson request his guide हो गई. और what was revolving in the mind of Samson when she was given rest. और how did Samson take the revenge upon his enemies. फिर नेक्स्ट पोम है आपके पास से नॉट द स्ट्रगल नॉट एलिवेट्स और उसमें है कि व्हाट आर अ कॉफ्ट परसेप्शन अबाउट द होप एंड फेयर. एंड नेक्स्ट आपके पास व्हाट डू अ टाइड वेव्स सिम्बोलाइज इन सेइंग नॉट द स्ट्रगल नॉट एलिवेट्स. और नेक्स्ट पोम आपके पास लाइन फ्रॉम यूलिसिस और उसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं कि हाउ वॉज यूलिसिस एंड व्हाट who was Ulysses and what was his goal in his life. What tricks and galleries did Ulysses expected from a last journey. Who was Achilles and what had happened to him. Why was he called the great Achilles.
What does the writer mean when he say not unbecoming man that strove with a gods? नेक्स्ट आपके पास जो पोम है, लास्ट पोम है, लाइन्स फ्रॉम एंडीमेन्स. व्हाट अकॉर्डिंग टू अ किड्स is the main source of the joy in the poem Endymion, who real beauty give us a pleasure, and what does a John kids think about a dooms. अच्छा, एक और जो नोट है इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि मस्ट प्रिपेयर द मैसेजेस एंड द थीम्स ऑफ ऑल द पोइट्रीज़. जितनी भी थीम्स हैं, जितने भी जो मैसेज हैं वो आपको लाजमी पता होना चाहिए. फिर स्टूडेंट देखें ये नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स के सवाल आप लोग पढ़ लिएगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मैं सेक्शन सी को जल्दी से कवर कर दूँ और सेक्शन बी के अंदर इवन जो है वो होमोफोन्स आते हैं, वर्ड मीनिंग आती हैं, फ्रेजेस एंड वर्ब्स आते हैं. और सेक्शन सी के अंदर जो लॉन्ग आता है वो कॉम्प्रिहेंशन आता है, और कॉम्प्रिहेंशन अंदर जो आता है वो पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड और द वर्ल्ड IC 8 से आता है. और रिफ्लेक्शन ऑन द रिनोकिंग ऑफ ईस्ट ये आता है. नरेशन 10 ईयर से करें और 10 ईयर से करें भी, और एज वेल एज़ मैंने यहाँ पे 10 ईयर जो ना यहाँ पर जो नरेशन की है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट भी की हुई है. आप चेक कर सकते हैं कि 2019, 2018 और 17, 16, 15, 14, 13, 12 एंड 11 एंड 10 आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह से वो नरेशन को पूछते हैं. ये करके नहीं जानी है आपने, ये आप प्रैक्टिस के तौर पर आप देख सकते हैं. और जो इम्पोर्टेंट एसेस हैं वो है कि कोविड-19, पेंडेमिक, इन्फ्लेशन, महंगाई जो कि बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज या प्रॉब्लम ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द वाटर और गैस आपको पता है कितना ज़्यादा बहरान रहा. कराची में स्ट्रीट क्राइम इन पाकिस्तान हॉट टॉपिक है बहुत ज़्यादा. PSL 8 अगेन हॉट टॉपिक है आपके पास बहुत ज़्यादा. फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ अभी रिसेंटली, ये बहुत हॉट टॉपिक है. टूरिज़म इन पाकिस्तान, हीट वेव्स आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है. अच्छा, इसके साथ साथ प्लास्टिक बैग की जो प्लास्टिक बैग नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, इस पे भी ऐसे आ सकता है. तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.